Very good evening, all the viewers out there. At the very outset, I would like to thank Arunachal Press Club for providing us this platform to express our grievances before the government of Arunachal Pradesh. Let me introduce our team member. First, I am Matyup Tamlung, hails from Anjaw district, and I have started my sports journey in the year 2006, and I am 8 times state champion, 4 times Northeast champion, and 2 times national medalist. And on my right, Mr. Tagesa hails from Lower Subansiri district, and he is 12 times state champion, 4 times Northeast champion, and 6 times national medalist, and he is an international player, and he has started his sports journey in the year 2003. And on my left, she is Niktar Ani, and she started her sports journey in 2003, and she is 2 times national medalist. And next to Niktar Ani, we have Runa Dada from East Kaming district, and he is also a national player, 2 times national medalist, and he has participated in South Asia Championship and World Cup. And to my right, Tana Suraj, he is a Taekwondo player, and he has started his sports journey in 2007 from Sai Nahalagan, and he is 10 times state champion and 3 times national medalist. And next to Tana Suraj, we have Nikam Sonoliang from East Kaming district, and he is also a national player. So, alright, this was the short interest our grievances over the inordinate delay of sub-inspector recruitment under meritorious sport person quota, with notification number PHQ/par 90, person who have represented Arunachal Pradesh were invited to filling up their application. So we, being a meritorious sport person, have also submitted our application form. So it is very sorry to state that it took more than 3 years just to bring this recruitment into process. 3 साल एडवर्टाइजमेंट डेट के बाद 3 साल के बाद में ये प्रोसेस आया. तो on 26 August 2021 we get first notification जहाँ पे 97 जो है एप्लीकेंट्स जो इसके अगेंस्ट में अप्लाई किया था, जो सेलेक्टेड, उसको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए पीटीसी बंदरदेवा में जो है ये अपियर करने के लिए हम लोग को जो है नोटिफिकेशन मिला. एंड लेटर ऑन वी गेट अनदर नोटिफिकेशन ऑन 10 September 2021 wherein it was informed to all the candidates that the medal जो सर्टिफिकेट का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है that will be written by the recruitment board for SIT verification. So during those days many जो cases of corruption practice in sport quota was coming up, तो SIT constitute किया था. And finally on 7 October 2021 we appear our physical standard test at PTC Bandardewa, and on the same day the merit scrutiny was also done by the recruitment board. And as per the earlier notification, हम लोग का जो ओरिजिनल मेरिट सर्टिफिकेट है उसको जो है बोर्ड ने जो है रिटेन कर लिया था. तो वी वर अश्योर्ड दैट कि रिज़ल्ट जो है ये SIT वेरिफिकेशन का बाद में जो है आउट होगा. तो हम लोग वेट कर रहे थे कि SIT का रिपोर्ट जो है आ जाने से रिज़ल्ट आएगा होगा. बट अनफॉर्चुनेटली द 4 months पास बाय, तो हम लोग को अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, रिज़ल्ट नहीं आ रहा. वेरेस जो है इट वॉज लर्न फ्रॉम द रिलायबल सोर्स, SIT had already submitted their report by the end of December 2021. December 2021 तक वो लोग ने जो है SIT का ये कर लिया था, लेकिन हम लोग का रिजल्ट जो है तब भी नहीं निकल रहा था. तो हम लोग बहुत चिंता हो गया
तो हम लोग ने पूछताछ किया कि अभी रिजल्ट क्यों ये इतना डिले हो रहा है, जबकि इट वाज ऑलरेडी रनिंग 4 इयर्स लेट। 4 इयर्स जो है हम लोग का ये हो रहा। इस बार जो है अगर हम लोग जो है इस बार जो है हम लोग का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो फिर हमारा जो है और 1 साल ऐसे ही लॉस हो जाएगा बोल के हम लोग ने जो है ऑन 12 फरवरी हम लोग ने जो है वी हैड गॉन टू डीजीपी ऑफिस एंड वी हैव सबमिटेड आवर फर्स्ट मेमोरेंडम फॉर एक्सपेडाइटिंग जो है अर्ली प्रोसीड्योर बोल के हम लोग ने जो है तब वहाँ जाके हम लोग को पता चला कि देयर वाज ए स्मॉल इशू इन फाइनलाइजिंग द मेरिट लिस्ट बोल के हम लोग को बोला, फॉर विच द डिपार्टमेंट हेड रोट टू डायरेक्टर स्पोर्ट्स क्लैरिफिकेशन के लिए ना, तो वो लोग ने डायरेक्टर स्पोर्ट को लिखा बोला। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गया और उसी समय में भी हम लोग को वी वर एश्योर कि जैसे ही डायरेक्टर स्पोर्ट की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आ जाएगा तो साथ ही साथ जो है जो मेरिट रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा बोल के। तो हम लोग को सुनने में मिला है कि डायरेक्टर स्पोर्ट की तरफ से जो है 11 मार्च 2022 को जो है क्लैरिफिकेशन हो गया और डिपार्टमेंट में जो है वो लोग कागज़ दिए दिया। तो उसके बाद कुछ दिन बाद हम लोग फिर गए नोटिस बोर्ड देखने, लेकिन टू अटर डिसमय इस वक्त भी जो है इस समय भी जो है रिजल्ट आउट नहीं हुआ था। देन हम लोग ने जो है एक रिमाइंडर लेटर फिर जो है 17 मार्च 2022 को जो है फिर हम लोग डीजीपी को जो है एक रिप्रेजेंटेशन डाला था। तो उसमें ये बोला गया था कि हम लोग उस समय फिर मिला था ये देन AIGP इराक बागरा सर को हम लोग मिला था। तो वहाँ पे जो है थोड़ा मार्च एंडिंग का बहुत फाइल पेंडिंग है, तो जैसे ही ये क्लियर होता है आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा बोल के हम लोग को बोला था। तो उसके बाद में कुछ दिन और बीत जाता है, फिर रिजल्ट नहीं निकलता है। तो हम लोग ने जो है ये मैटर को जो है होम को हम लोग अप्रेस करने के लिए हम लोग होम के पास गए, तो होम से हम लोग मिलने का मौका नहीं मिला। हम लोग वी वर इंस्ट्रक्टेड टू मीट OSD टू होम। तो उसने OSD सर से हम लोग मिला, तो OSD सर ने बोला ही हैज़ ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड बोल के डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्ट कर दिया कि इसको जल्दी जो है आप लोग का जो है हो जाएगा। और इसी बीच में जो है 123 जो सब इंस्पेक्टर का जो है रिक्रूटमेंट चल रहा था, तो उसका साथ में जो है आप लोग चिंता मत करो, आप लोग नेपाल में एक साथ में ट्रेनिंग करेगा बोल के हम लोग को बोला गया था। लेकिन मार्च चला गया, फिर भी जो है ये रिजल्ट आउट नहीं हो रहा था। तो रिजल्ट आउट नहीं हो रहा था, हम लोग ने फिर ये टीम का बिहाफ में मैंने फिर हमारे ऑनरेबल DCM सर को जो ये मैटर को अप्रेस किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो उसके बाद मैं फिर डिपार्टमेंट में अभी काम अभी जो है हो जाएगा बोल के ऐसे करके जो है अभी तक मैंने नाउ इस 11 मंथ्स हो गया जब से हम लोग का स्क्रूटिनी हो गया, तब से जो है हम लोग का रिजल्ट नहीं निकला। तो लास्ट टाइम जो है हम लोग का ये DGP सर कुछ हम लोग ने जो है 18 अगस्त को हम लोग ने मिला, तो वर्बली हम लोग को एश्योर किया कि अभी जो है आप लोग का जो है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जो है आप लोग का रिजल्ट निकल जाएगा बोला। उसके बाद में आप लोग ने शायद मीडिया में भी सुना होगा, फिर हम लोग का ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी 31 अगस्त को बोला था कि रिजल्ट हैज़ बीन फाइनलाइज। तो जैसे ही DGP जो है स्टेट में अरुणाचल में वापस आएंगे जो है डिक्लेयर हो जाएगा। तो हम लोग खुशी लग रहा था, हमने इतना साल का चलो इतना साल तक हम लोग जो है वेट किया, एटलीस्ट अभी तो हो जाएगा। फिर हम लोग 8 तारीख को जो है PHQ जाता है, तो फिर वहाँ जाके पता चलता है कि डियर इज न्यू इशू, अभी फिर नया इशू आ गया। तो उसमें हम लोग को वो इशू में हम लोग OSD सर से मिला, तो वो बोल रहे हैं कि अभी जो है एक नया गाइडलाइन है, उसको जो है यहाँ पे जो है ये करना पड़ेगा। तो मेरा गवर्नमेंट से एक सवाल है कि आप हर बार जो है कोई ना कोई हर एक महीना जो है अलग अलग रूल जो है इसमें ऐड करते जाएगा, मॉडिफाई करते जाएगा, तो क्या ये रिक्रूटमेंट का जो पैरामीटर है वो क्या चेंज नहीं होगा क्या? हम लोग को जो 8 तारीख को जब हम लोग ने वहाँ पे जब जाके मिला, तो उसी समय में जो है एक 8 अक्टूबर जो है 2021 का जो है एक नया गाइडलाइन है बोला। उस हिसाब से जो है वहाँ में APSSB और अरुणाचल प्रदेश सर्विस कमीशन का जो एक मेंबर होना है बोला। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये जो है ये हम लोग का जो है हम लोग का तो 2018 में जो है रिक्रूटमेंट
एडवर्टाइजमेंट हुआ था। तो कैसे जो है ये हम लोग का जो इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो है वो गाइडलाइन जो ये अप्लाई होगा, हम लोग का तो 7 अक्टूबर 2021 को ही स्क्रूटनी हो चुका था। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसे लग रहा है कि हम लोग का जो है बाय हुक एंड क्रूक जो है हम लोग का ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिले करवाने के लिए ये किया जा रहा है। आप लोग भी बताए कि एक रिक्रूटमेंट को आप 4 साल 5 साल जब लगाएगा, ये किसका इंटरेस्ट में है? ना गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का इंटरेस्ट में है, ना डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट में है, ना स्पोर्ट पर्सन का इंटरेस्ट में है। अभी नया रूल आप नया उसमें अप्लाई करते जाएगा तो ये रिक्रूटमेंट तो आप कभी भी कंप्लीट होगा ही नहीं। हम लोग को तो ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन हिसाब से जो है वहाँ पे कुछ गाइडलाइन दे के रखा गया था। लेट मी कम टू दैट। यहाँ पे जो हम लोग कुछ पैरामीटर दिया था, यहाँ पे जो है एक यहाँ पे जो है गाइडलाइन जो है मेरिट सिलेक्शन जो है कैसे होगा वो स्पोर्ट कोटा का जो है। तो यहाँ में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन लेटर वाइट 14034/1/1995 established dated 4 May 1995 forwarded by Government of Arunachal Pradesh Department of Personnel Administrative Reform and Training while letter OM number 13/2000 dated 14 May 2001। तो इसका हिसाब से जो है यहाँ पे जो है ये रिक्रूटमेंट को जो है इसमें जो है 41 जो है ये 41 जो है स्पोर्ट डिसिप्लिन जो है क्वालिफाई होता है ये एडवर्टाइजमेंट का अगेंस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो अभी सवाल ये होता है कि जिस समय में जो ये नोटिफिकेशन दे के रखा था उसके बाद जो है नया रूल आया, उसमें तो अभी स्टैंडिंग जो है 63 स्पोर्ट डिसिप्लिन है। तो क्या वो भी यहाँ अप्लाई होगा क्या? मैंने जब रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पे स्पेसिफिक कटअप डेट होता है, एप्लीकेशन रिसीव लास्ट डेट जो है हम लोग का 31 जुलाई 2018 तक था। तो क्या वो पैरामीटर को भी आप लोग चेंज करेगा क्या? तो इसके लिए हम लोग जो है बहुत दुख है। पता नहीं क्यों हम लोग का साथ में ऐसे ही ये ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। कभी कभी नया रूल आता है फिर उसको ये करेगा बोलता है, ऐसे करके हम लोग 5 साल हो चुका है, 5 साल हो रहा है अभी। तो मैं यही अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी कि हमारा जो ये रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये पुलिस जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है अभी फर्स्ट टाइम जो है ये रिक्रूट नहीं कर रहा है। अभी तक आप जो है एज ऑफ नाउ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज प्रोवाइडेड 392 जो है इंडिविजुअल्स को जो है स्पोर्ट कोटा में जो है नौकरी दिया, जिसमें जो है 259 जो है होम डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट रिक्रूट भी आपने किया। ये पहली बार नहीं है कि पुलिस ये रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो मुझे तो अभी यहाँ पर जो है एक ही डाउट होता है कि कहीं यहाँ पर बैकडोर एंट्री तो नहीं कराने का कोशिश तो नहीं हो रहा है, या पुलिस डिपार्टमेंट इसको ये रिक्रूटमेंट को बिल्कुल ही करना नहीं चाह रहा है, या तो पुलिस वो डिपार्टमेंट में जो है जो बैठा इंसान जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो इनकॉम्पिटेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट जब एडवर्टाइज होते समय जो है हम लोग का डीजीपी सर जो SBK सिंह था उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर RP उपाध्याय सर आए वो भी चले गए। अभी हमारे नए DGP जो है ये गोचा सर है। तो कभी DGP नया है कहानी सुनाते हैं, कभी AIGP नया है, कब तक ऐसे चलेगा? और अगर टाइमली जो है हम लोग का ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है ख़त्म किया जाता है बोलने से आज तक अभी जो है हम लोग अपना सर्विस दे रहे होते। और इसी बीच में जो बहुत सारा जो डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट चल रहा था, लाइक RWD में जो है 2019 को रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट हुआ था जे पोस्ट का, उसका भी कंप्लीट हो गया। फिर रिसेंटली जो है लास्ट 2021 में जो है APCS की तरफ से जो है फिर टेलीकॉम का जो है सब इंस्पेक्टर 13 पोस्ट निकला है। तो उसका भी रिसेंटली जो है ये रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और उनका जो है बाय 20 ऑफ दिस मंथ 22 ऑफ दिस मंथ जो है उन लोग का जो है मेडिकल टेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद वाइवा वॉइस भी 27 को ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग के साथ में क्यों इतना इंसाफ़ी हो रहा है, ना इंसाफ किया जा रहा है? तो बाकी जो है मेरे ये बात है। तो जैसे
मेरे कलीग्स ने जो बताया है, जो ऑलमोस्ट पूरा ब्रीफ ही हो गया, तो हम ज़्यादा नहीं, एक दो पॉइंट्स को हम शेयर करेंगे। ये आप सबको अभी पता चल गया होगा कि ये एडवर्टाइज जो 18 को हो गया, टिल डेट अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो मतलब 5 ईयर्स हो रहा है इसका। हाँ थोड़ा सा ठीक है, तो ये जिस हाईलाइट है, तो मतलब 5 ईयर्स हो रहा है, तो मतलब ये 5 ईयर्स कुछ मामूली बात नहीं होता है किसी का लाइफ के लिए, किसी का एज बार जो क्रॉस हो रहा होता है इसमें 5 ईयर्स के अंदर। तो गवर्नमेंट से हम लोग कितना बार जगह अपील किया, जितना हायर अथॉरिटी है सबको हम लोग ने अपील किया, लेटर लिखा, जितना हम लोग पॉसिबल है हम लोग कोशिश किया। तो रिगार्डिंग जैसे कि देखो सिंपल से एक है, जैसे जब ये लास्ट टाइम हम लोग जब PH को गया था 8 तारीख को, तो उसमें जैसे कि एक ऑर्डर जो निकला था, ये AR से जो ऑर्डर निकला था उसमें कि APCS से एक आना है, अगर ग्रुप A और ग्रुप B का होता है तो APCS से एक आएगा, अगर ग्रुप C और ग्रुप D आएगा तो APSSB से एक मेंबर कंपलसरी आना है स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट। तो वो लोगों ने क्या किया कि लेटर जो दिया APCS को, उसको दिया, कमीशन को दिया, तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि हम लोग नहीं आए, मतलब हम लोग नहीं आएगा, हम लोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम लोग नहीं आएगा, ऐसे रिप्लाई दिया उसको, जो अभी ये डिपार्टमेंट को जो रिप्लाई दिया कि नहीं आएगा। तो उसमें हम लोग बात करते समय हम लोग ये बोला है कि अभी ये कि देखो जो भी ऑर्डर निकलता है, कोई भी कुछ या एक जो भी कुछ निकलता है, वो तो जैसे जिस दिन से होगा, जिस दिन ऑर्डर निकला, जैसे कि 22 को निकला है तो 22 का जो डेट का उसके बाद जो फ्यूचर है उसमें अप्लाई होगा, तो ये ना बैक जाएगा, वो बैक डेट में तो नहीं होना चाहिए। तो वो लोग ने ये कहा कि इसमें ऐसा लिखा है कि ये एक APCS मेंबर होना है, जबकि हम लोग का तो 18 में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसमें हम लोग का ऑलरेडी सब चीज़ फॉर्म सब चीज़ फिलअप हो चुका है, जितना प्रोसेस है सब कर चुका है, इसके बाद फिजिकल तक भी कर दिया। इसके बाद जब रिजल्ट का समय आ रहा है तो कोई नहीं है कि रिजल्ट के समय में, अभी रिजल्ट के समय में वो रूल को क्यों अभी इंगेज कर रहे हैं हम, ऐसा टाइप का हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल देगा, सिंपल वे में एक एग्जाम्पल देगा, ऐसा टाइप का हो गया जैसे कि मान लीजिए कहीं एक एडवर्टाइज निकला, तो वहाँ क्वालिफिकेशन मांग रहा है क्लास 10 का, क्लास 10 के क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया, उसमें सब चीज़ जितना जो प्रोसेस होता है कर दिया, रिटन से सब चीज़ हो गया, लास्टली फाइनलाइज करना है, रिजल्ट निकलना है, सिर्फ रिजल्ट निकलना बाकी है। तो उसमें जाके वो लोग बोलेगा कि एक नया गाइडलाइंस आया है, अभी इसमें ये 10 पास नहीं 12 पास होगा, ये तो नहीं होगा ना नया कुछ डालने से। तो जब रिजल्ट के समय में आता है, जो पुराना रूल है उसमें तो चलेगा, नया जिसको अभी आप डालते रहेगा तो फ्यूचर में तो आते रहेगा, तो ऐसा मतलब होने से हम लोग का डिले होते रहेगा, एवरी टाइम डिले ही होते रहेगा हम लोग का। तो लास्ट टाइम जैसे कि होम मिनिस्टर सर ने बोला था कि सब चीज़ हो गया है, तो अभी सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर करना है DG आने से। तो DG आने के बाद अगर जो हम लोग आ गया, DG को ये आने के बाद भी जब हम लोग गया तो हम लोग को नहीं लग रहा है कि ये विद इन ना समय में होगा, क्योंकि ये लोग फिर हम लोग को घुमा रहा है, फिर पेपर वर्क में ले जा रहा है, जबकि एश्योरेंस दिया था फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो हम लोग का डिमांड सिर्फ सिंपल वे है, सिर्फ सिंपल है, हम लोग किसी का मतलब हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम लोग को फेवर करो, और ये नहीं बोल रहे कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने से हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नहीं, किसी को भी मिल सकता है वो। तो हम लोग सिर्फ एक सिंपल डिमांड है, हम लोग जितना सके जल्दी मतलब हम लोग सिर्फ डिमांड सिर्फ रिजल्ट है, हम लोग रिजल्ट चाहिए जैसे भी हो, क्योंकि हम लोग राइट है रिजल्ट जानने का। 5 ईयर्स हो चुका है, मामूली बात नहीं है, 5 ईयर्स हो गया, इसलिए लेट हो गया, इसलिए आज हम लोग आना पड़ा यहाँ पर। इतना साल से हम लोग झेल रहे हैं, गवर्नमेंट को भरोसा करके बेहतर है, दिल से भरोसा करके बेहतर है, कुछ ना कुछ वो लोग हम लोग को एनी हाउ सॉर्ट कर देगा एज ए स्पोर्ट्स पर्सन को। अगर वो लोग हम लोग रेस्पेक्ट करता है, जो हम लोग जब भी कुछ अचीवमेंट लाता है हम लोग को फेलिसिटेट करता है, इतना अच्छे से हम लोग वेलकम करता है, तो क्यों ये चीज़ में जब मेन ग्राउंड जब में आता है तो क्यों वो लोग मतलब ये 5 ईयर्स लगने तक, कोई भी ऐसे जॉब होता है कि 5 ईयर्स लगता है कि कोई भी रिक्रूटमेंट में, उसका रिजल्ट निकालने के लिए भी 11 मंथ्स चल रहा है अभी, टिल डेट अभी तक मतलब कुछ भी है, मतलब हम लोग को ये नहीं दे रहा है। सिर्फ एक ही सिर्फ डायलॉग है वो लोग का, सिंपल वाला डायलॉग देते वो लोग, हो जाएगा ओनली हो जाएगा, सिर्फ यही डायलॉग देके हम लोग को एश्योरेंस दे रहा है, एश्योरेंस पे एश्योरेंस सिर्फ दे रहा है। तो बस वही है, हम लोग को एनी हाउ जितना भी जो आज जो देख रहा है, जो भी कोई देख रहा है, जो मिनिस्टर लेवल हो, चीफ मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, DGP सर जो भी हो, काइंडली प्लीज़ हम लोग का एक ग्रीवेंसेस को समझो। 5 ईयर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोग का एज बार भी क्रॉस हो रहा है, आपको रिजल्ट सिर्फ डिक्लेयर करना है, हम लोग कुछ चीज़ को नहीं मांग रहा, हम लोग फेवर भी नहीं मांग रहे किसी को चीज़। तो ये चीज़ को लेके तो बस ये चीज़ को लेके हम लोग ने जब सब चीज़ में जब थक गया था कि कोई भी हम लोग को सपोर्ट नहीं, मतलब हर एंगल से नहीं हो रहा था, हम लोग एट लास्ट अफसू टीम का पास किया, थाना दोजी सर का पास गया प्रेसिडेंट,
उसको हम लोग ने अपने ग्रीवेंसेस बताया, शेयर किया, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। इतना अच्छा रिस्पॉन्स था कि वो उसी समय में फ़ोन करके अपने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को बात कर दिया, उसका हम लोग को बोला मिलने के लिए। तो उसी समय फिर हम लोग स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को मिला, वही दिन में हम लोग स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मिला। वो लोगों ने हम लोग को बात सुना, ग्रीवेंसेस सुना, तो वो लोग ने हम लोग भी उसको जस्ट कुछ नहीं बोला, फेवर नहीं मांगा हम लोग ने उसको कि हम लोग को ही मिलना है, ये नहीं बोला। बस हम लोग को रिजल्ट डिक्लेयर करवा दीजिए, आप लोग का जस्ट हम लोग को इतना साथ दीजिए कि सिर्फ रिजल्ट ही डिक्लेयर करवा दीजिए, बस, और कुछ आप लोग से फेवर नहीं। तो ये जिसमें हम लोग के साथ में अफसू टीम भी बहुत जोरदार से लग रहा है, जिसके लिए हम बहुत थैंकफुल है अफसू टीम को भी, जो इतना सीरियस लेके हम लोग इशू को एज ए स्टूडेंट बॉडी है हम लोग का, एपेक्स बॉडी ऑफ अरुणाचल है, तो ये जेन्युइन इशू है बोल के उसने बहुत अच्छा से ये रिस्पॉन्स किया। तो अभी मेरा तो ये है कि अभी आज जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव जो दिया है, हम लोग ने 20 डेट तक का समय दिया है, मतलब हमेशा वो लोग ही हम लोग टाइम देते हैं। तो हम लोग ने कहा कि 20 तक एनी हाउ जैसे भी आप लोग ये चीज़ को सॉर्ट आउट करके हम लोग को 20 तक रिजल्ट डिक्लेयर करवा दीजिए बोल। तो इसके बाद अगर नहीं होता है तो उसमें हम लोग कुछ आगे मूवमेंट करेंगे विथ अफसू के साथ। अफसू अगर कुछ भी मूवमेंट करेंगे तो हम लोग जितना भी कैंडिडेट है करेंगे, अगर हंगर स्ट्राइक होता है वो भी करेंगे, प्रोटेस्ट होगा वो भी करेंगे, अफसू जहाँ चाहेगा हम लोग वहाँ करेंगे। एनी हाउ हम लोग को ये रिजल्ट को जैसे भी डिक्लेयर करवाना है, और हम मेरा फुल भरोसा है कि अफसू टीम हम लोग का ये फाइट में एनी हाउ लास्ट तक रहेगा, और हम भरोसा है कि वो लोग ये चीज़ को हम लोग को जस्टिस दिला के ही छोड़ेगा, हम इतना होप करते हैं। थैंक यू। आपने आपसे को अप्रोच किया आपका इशू को लेकर ना, यस आप बोल रहे कि इशू तो आपका है, लेकिन ऐसा बोल रहे कि आप आपको जो डेमोक्रेटिक कंडक्ट करेगा उसमें आप साथ देगा, इधर आपको नहीं लगता कि आप लोग इनिशिएट करना चाहिए, दे विल बी हेल्पिंग यू गाइस, आपको वो लोग का ऊपर ना डिपेंड हो गया जबकि इशू आपका है। ऐसा है कि जैसे कि हम लोग अफसू को ऑलरेडी ये चीज़ को हम लोग शेयर कर चुका है, तो अफसू का गाइडलाइंस में हम लोग अफसू क्योंकि ऐसे एपेक्स बॉडी है तो हम लोग का, तो ऐसे बड़ा भैया है तो ये चीज़ को अगर जेन्युइन हम लोग साथ ये करेगा तो ओबियसली हम लोग भी साथ ही देखेंगे, वो भी हम लोग के लिए कर रहा है, सेम ही है जो भी हम लोग कर रहे हैं। तो अगर अफसू ये चीज़ को उठाते तो अच्छा है, वही इसलिए हम लोग साथ देगा अफसू को भी, क्योंकि इशू तो हम लोग का है, लेकिन हम लोग ने अपने इशू को शेयर किया क्योंकि हम लोग से नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग सिंपल वे है कि हम लोग एक स्पोर्ट्स पर्सन है ना, लाइफ में कभी हम लोग ने स्पोर्ट्स के बाहर निकला ही नहीं, मतलब कि ऐसे कुछ पॉलिटिकल चीज़ में ऐसे भी इन्वॉल्व भी नहीं हम लोग, मतलब हम लोग नादान है। और ये इशू की वजह से फर्स्ट टाइम हम सेक्रेटरीट ऑफिस का भागदौड़ किए, क्योंकि उससे पहले जस्ट अपने स्पोर्ट्स के लाइन में ही सिर्फ बिजी था। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ और क्या क्या जो बहुत चीज़ होता है, तो वो चीज़ को हम लोग डिटेली मालूम नहीं है, तो इसलिए हम लोग को हेल्प चाहिए, तो इसलिए उस लोग का गाइडेंस हम लोग को चाहिए ना। हम लोग यहाँ में कोई परफेक्ट लीडर है कि ऐसे लीडर नहीं, क्वालिटी नहीं है, कभी कॉलेज से लेके स्कूल से लेके हम लोग ने कभी वो चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, ओनली स्पोर्ट्स। तो यही कारण का वैसे हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ होता होगा कि हम लोग उसको कन्विंस नहीं कर सक रहा होगा, जो 5 इयर्स लग गया, यही है, मतलब वही है कि हम लोग इतना ये नहीं, तो इसलिए हम लोग उसका गाइडेंस चाहिए होता, तो इसलिए जो करेंगे। आपने आपका ब्रीफिंग में कहा, क्लेम किया कि ये जो SIT जो केस था ना, हाँ। वो क्लियर कर दिया, मैंने SIT ने वो अपना फाइल सबमिट कर दिया, वो आप लोगों के पास प्रूफ है, और जस्ट यू हैव हर्ड द एयर न्यूज़ और आप लोग यहाँ आ गए, कंफर्म इट विद द डिपार्टमेंट। हाँ, एक्चुअली वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्स, दो वी डोंट हैव द ये पेपर में हम लोग का वो नहीं है, तो वहाँ शायद जो है इसको मांगने से भी शायद वो लोग नहीं देगा, लेकिन सुनने में आया है कि दे हैव ऑलरेडी सबमिटेड ना। और ऐसा जहाँ तक SIT का बात है, वो तो आई एम डेफिनेटली कॉन्फिडेंट कि वो लोग इतना समय, तो वो वेरिफिकेशन के लिए इतना समय नहीं लगेगा, वो लोग विदिन जो है एक महीना में वो लोग का रिपोर्ट जो है दे दिया था बोल के हम लोग को ऐसे। तो आपने क्रॉस चेक नहीं किया आपका जो रिलायबल रिसोर्स ने जो बताया? एक्चुअली सिंस ये जो है प्रोसेस जो है ख़त्म नहीं हो रहा है, तो कॉन्फिडेंशियल है बोल के हम लोग को बाहर में पेपर तो वो लोग रिलीज नहीं करेगा। और एक सवाल रहेगा, आपने कहा कि गवर्नमेंट ने कुछ फिर आपने बोला बहाना दिया कि नया गाइडलाइन किया है। हाँ, आपने तो पुराना गाइडलाइन को रीड आउट कर दिया, तो नया गाइडलाइन में क्या है? हैज दे टोल्ड यू गाइस? एक्चुअली वो OSD ने हम लोग को बोला कि ये जो 8 अक्टूबर जो है 2021 को जो है ऑफिस जो मेमोरेंडम है ना, हम लोग का जो स्पोर्ट कोटा का जो रिक्रूटमेंट जो रूल है,
तो इसलिए मैं बोल रहा था कि वो एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो रूल में जो नया जब भी एडिशन होता है ना, जब हम लोग का पुराना रूल था उसमें जो है स्पोर्ट डिसिप्लिन भी 41 स्पोर्ट डिसिप्लिन ही एलिजिबल था मैंने ये जो रिक्रूटमेंट का अगेंस्ट में फिलअप करने के लिए। तो अभी नया में जो है 63 है। तो मुझे लगता है कि कोई भी जो है प्रोस्पेक्टिव स्टेट्यूट जब बनता है तो इट कान बी एप्लीकेबल इन रेट्रोस्पेक्टिव इवेंट्स। तो इसलिए जो है हम ये If you don't mind, can you provide the number of applicants आप लोग का जो ये डिमांड का ऊपर है? या श्योर। कितना नंबर एप्लीकेंट्स कितना लोग हैं? और एप्लीकेंट्स जो है Waiting for the recruitment. एक्चुअली जो है 97 actually total applicants was some 545 out of 545 97 जो है ये एप्लीकेंट्स वर सेलेक्टेड फॉर अपियरिंग फिजिकल टेस्ट। और फिजिकल टेस्ट में भी कोई जो है बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो है डिस्क्वालीफाई हो गया। तो आई एम नॉट श्योर कि अभी प्रेजेंटली कितना नंबर है। वो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही ये हो। और इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। मेन बात इसमें एक इशू है, सॉरी थोड़ा बोलना भूल गया। जब फिजिकल टेस्ट हुआ था उसमें हम लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले चुका था, जो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है हम लोग स्पोर्ट्स का कि SIT को ये चेक करवाने के लिए ओरिजिनल। जब नोटिफिकेशन निकला था कि फिजिकल का था उसमें SIT का भी एक नोट निकला था कि जो भी सर्टिफिकेट है ओरिजिनल सर्टिफिकेट हम लोग उसको जब्त कर लेगा, मतलब ले लेगा फॉर ये SIT वेरिफिकेशन के लिए। तो हम लोग तो बहुत खुशी हुआ कि ये इस चीज़ में फेक नहीं होगा, क्योंकि SIT घटन हो रहा है। तो हम लोग तो सबसे ज़्यादा खुश हुआ। कोई भी एक स्पोर्ट्स पर्सन जो डिजर्विंग स्पोर्ट्स पर्सन जो जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन है वो तो चाहेगा कि जितना हो सके क्लियर होना है। तो उसके बाद क्या हो गया कि उसने कहा कि जब रिजल्ट आउट हो जाएंगे तब सर्टिफिकेट को दे देगा। तो तब से लेके टिल डेट अभी तक हम लोग वो सर्टिफिकेट भी रिटर्न भी नहीं कर रहा है, जिसका कारण हम लोग दूसरा जॉब में भी अप्लाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे कोई कैंडिडेट क्योंकि अभी बहुत पोस्ट निकल रहा है तो उस चीज़ के लिए हम लोग जो वो चीज़ भी नहीं कर पा रहा है। ये डिले का वजह से। और लड़का लोग हम लोग एक दो जाके वो लोग ने कहा कि रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा तभी इशू करा सकते हैं इसको। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट को भी रखा है। तो कोई लड़का लोग अलग जॉब में भी कोई कैंडिडेट होता होगा करने के लिए, एक दो लड़का है हम लोग का जो अलग में ट्राई करेगा सोचे, लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट को भी लेके रखा है। टिल डेट अभी तक हम लोग रिटर्न भी नहीं किया है। अभी 11th मंथ हो रहा है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी उन लोग के पास ही है। जो हमें उसका वजह से हम लोग बीच में ऐसे रखे ना इधर का ना इधर का। आपका ये इशू आपने खुद कहा कि 5 years ऑलमोस्ट 5 years। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट क्यों देता? फिर आप 20 days अल्टीमेट तकलीफ दे रहे हैं वुमेन को। यू थिंक कि 5 years लग गया मतलब उसका रेस्पॉन्ड करने में, और यू थिंक कि 20 days में वुमेन रेस्पॉन्ड करेगा आप लोग? अगर वो लोग जैसे कि अभी रिसेंटली अभी वो तो अपना होम मिनिस्टर भी जब मीडिया प्लेटफॉर्म में आके जब वो अपना बात को बता दे कि ऑलमोस्ट हो चुका है रिजल्ट, तो जैसे ही वो DG आ जाएगा तो उसे पब्लिश करना बाकी है। तो हमको नहीं लगता है इतना एक होम मिनिस्टर होके तो ऐसे जहाँ तक तो नहीं बोलना चाहिए। कुछ सोर्स होगा वो लोग जो सही चीज़ होगा, इसलिए वो चीज़ को मीडिया में आके वो शेयर किया है। तो हम होप है कि जितना हो सके हम लोग गवर्नमेंट जो कि करवा देगा होगा। इवन ये 5 years इसलिए लग गया कि 3.5 years तो आपका क्लियरेंस में लग गया कि किससे करना है, APCS से करना है, SSB से करना है, ये जिसमें वो वगैरह वगैरह बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए वो चीज़ को भी हम लोग ने इतना शेयर नहीं किया, जैसे उसमें लग गया था। तो हम लोग भी तो वही गए ना, मतलब क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है। हम लोग भी यही क्वेश्चन ही सबको पूछ रहे क्यों हो रहा है, क्यों इतना लंबा ले रहा है के। और पहले भी हम बताया कि हम लोग फिर इतना इतना स्पोर्ट्स पर्सन है तो इतना डिटेली एडमिनिस्ट्रेशन जिसको मालूम नहीं है, जिसका वैसे में भी हम लोग से कुछ गलती मतलब ये हुआ होगा, इसलिए डिले हुआ होगा। मतलब हम लोग को घुमा सक रहा होगा वो लोग, क्योंकि प्रॉपर वे में मालूम नहीं होगा। लेकिन समय में आपने ये भी मेंशन किया कि आपको लगता है इतना जो डिले हो रहा है, मे बी देयर इज सम बैकडोर एंट्री एंड यू सेड इट, आपने कहा। तो आपको लगता है ऐसा हो रहा है? देखिए अभी रिजल्ट निकलने के लिए 11 months ये हो रहा है। तो अभी हम मजबूर है हम मजबूर है ऐसे सोचने पर ना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कोई भी रिजल्ट जो है इतना समय नहीं लगता है। और जब भी हम लोग वहाँ पर पूछने जाते हैं, कभी टेक्निकल इशू, कभी ये प्रॉब्लम, कभी ये इशू, तो ऐसे बातों में हम लोग को उलझा के जो है अभी तक 11 months हो गया। तो हम लोग को ऐसे डाउट लग रहा है। तो अभी
इसका जवाब जो है शायद डिपार्टमेंट का पास या गवर्नमेंट का पास ही होगा कि हम लोग को क्यों इस तरह से ये कर रहा है। वही मतलब वही इतना अगर 5 इयर्स लग रहा है बोनस, ऑब्वियसली हर कोई जो कैंडिडेट है उसका माइंड में तो नेगेटिव तो आएगा ही, इवन कैंडिडेट के नहीं, जो भी पेरेंट्स हो जो भी पब्लिक हो, अगर इतना टाइम अगर वो ले रहा है, अगर सही है तो एक बार में तो रिजल्ट निकले, अगर इतना टाइम एक्सक्यूज ले रहा है तो मे बी नेगेटिव